स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th का जो पेपर हुआ था उस पेपर का हम डिटेल सॉल्यूशन लेकर आ गए हैं इस वीडियो में। और आज हम पूरा देखेंगे कि पेपर का जो लेवल था वो किस हिसाब से था और पेपर के अंदर क्या था। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन जो आया था आपके लिए दैट वाज, सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज HCF ऑफ नंबर 16 and 20 will be, so that will be your 4 answer. Which of the following is an irrational number? So the irrational number is option number C. Number of zeros of the polynomial px for given graph y. So as you all know, the graph ऐसा एक ग्राफ जो कि x एक्सिस को जितनी बार टच करता है तो हमें पता है कि नंबर ऑफ जीरोस भी उतने ही होते हैं। So here the graph touches at 2 times, so that's why the number of zeros will be 2. चलिए आगे देखते हैं। The value of y for the following pair of linear equations. So you can see that x is equal to 4 and x minus y is equal to 90. So you can put the value x is equal to 4 here. So after that you will get the answer x is equal to minus 5. ठीक है। अब so the next question is sum of n terms of an AP a, a plus d and a plus 2d. So the sum will be Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. Next question, in the first term of an AP is 11 and the 10th term is 20, then the sum of its 10 terms will be. तो हमें क्या करना है कि इसके 10 terms का सम निकालना है। तो 10 terms का सम निकालेंगे हम लोग। ठीक है, A is given equal to, it is given that 11 and 10th term, so a plus 9d is equal to 20. So this is equation number 1 and this is equation number 2. After adding, so a plus 9d minus a is equal to 20 minus 11. So cancel out. 9d is equal to 9. So d is equal to हो जाएगा आप लोगों का 9 by 9 which is equal to d is equal to 1 आ गया। Now apply the formula. The sum of Sn is equal to n by 2 और a plus, ठीक है। So n कितना 10 upon 2 और a कितना हो जाएगा बेटा, a is 11 plus n कितना है आपका 20. So this is 5 and this is 30. This is 30. So after solving 155. The option number B is correct. ठीक है। In the given figure, if PQ is equal to PQ is parallel to RS, triangle POQ is congruent to triangle SOR, then angle R is equal to 58, angle POR is equal to 118, then find the value of angle P. So angle P कितना हो जाएगा अगर हम यहाँ से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं इसका, तो this will be your 62, this angle will be your 62 degree, and after solving this we can say that the जो angle हो जाएगा हमारा 62, that is option number C is correct. ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। How many maximum tangents can be drawn to the circle from external point of the circle? So there are two tangents can be drawn. Two tangents can be drawn from the external point, as you all know. ठीक है, so option number D will be correct answer. ठीक है। Next question is, in the given figure TP and TQ are two tangents on the circle with center O and angle POQ is equal to 125, then angle PTQ is equal to, so this is 90, this is again 90, so 90 90 180, 180 305, so 75 will be the correct answer. Next, the coordinates of the midpoint of the line segment joining the points 4, minus 1 and minus 2, 3. So as you all know, so minus 2 plus 4, so that will be minus 2, plus 2 minus 1 in equal. Option number B is correct answer.
a is equal to 4/5, then find the value of cos a. So for cos a we have to find out cos a is equal to क्या होता है, cos a base upon cos a is equal to base upon hypotenuse. तो base कितना हो जाएगा इसके लिए 3, तो 3/5 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. A 1 meter long rod is standing vertically on the ground. If the angle of elevation of the sun is 30 degree, then the shadow will be. तो क्या करेंगे? 1 meter long, and if the angle of elevation of the sun is angle of elevation of the sun is 30 degree, so this is the angle. Angle 30 degree, and we have to find out the length of the shadow will be. So length of the shadow कितनी हो जाएगी, आप लोगों को क्या निकालना है? This is you have to find out. तो हमें क्या करना पड़ेगा? This is 1 meter. So base upon perpendicular is equal to tan 30. So base कितना दिया हुआ है? Base हमें find out करना है. B upon perpendicular कितना है? 1 is equal to 1 upon root 2. tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 upon root 3. ठीक है. So कितनी वैल्यू आ जाएगी? यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 1 upon root 3 मीटर. The answer will be indirectly say 1 upon root 3. 7 centimeter in the circle of radius 7 centimeter. The area of minor sector is 54 centimeter square. Then the area of major sector will be. So we have to find out the area of the circle. Area of the circle कितना हो जाएगा? Pi. Area of circle is equal to pi r square. So pi r square 22 upon 7 multiply 7 multiply 7. So 7 to 7 cancel out, that is 154. तो यहाँ से अगर 154 में से मैं ये माइनस सेक्टर का जो एरिया है, अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ, माइनस सेक्टर के एरिया को अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो ये कितना बचेगा? 100 सेंटीमीटर. नेक्स्ट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r will be. So total surface area for a solid sphere, तो हम चाहे कर्व सरफेस एरिया की बात करें या टोटल सरफेस एरिया की बात करें, दोनों ही केसेस में जो सरफेस एरिया होगा वो सेम होगा. तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला है दैट विल बी और 4 pi r square. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विद साइड 1 सेंटीमीटर विल बी. टोटल सरफेस एरिया तो दैट इज 6a स्क्वायर. तो दैट इज, देखो कई बार क्या होता है ना बच्चे, यहाँ पे ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है ना दैट इज 6 सेंटीमीटर क्यूब. अब जिन बच्चों को सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर स्क्वायर में डिफरेंस नहीं पता होता है, वो बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको पता नहीं चलता है. ठीक है ना. तो ध्यान रखना कि जो एरिया होता है वहां पे हम सेंटीमीटर स्क्वायर यूज करते हैं, और जो वॉल्यूम होता है वहां पे हम सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब जो भी हमें अकॉर्डिंगली दिया होता है वो हम यूज करते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट इज मॉड. The mod of following frequency distribution. जो ऐसा डेटा जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारा क्या हो जाएगा? मॉड हो जाएगा. तो इसकी 8 है, 13, 16, 15, तो इस 16 वाला यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. The lower limit of median class of the following distribution will be. तो मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं बेटा? ये CF दिया हुआ है, तो CF के लिए यहाँ पे क्या हो गया? 25 है. सो 25 अपॉन 12.5. सो 12.5 के लिए हम क्या करेंगे? 12.5 हमारा कहाँ लाई करेगा? इस वाली क्लास के अंदर. तो मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट हो जाएगी, वो लोअर लिमिट क्या होगी आपकी? 20. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन अ टॉस ऑफ अ कॉइन विल बी. तो हेड की प्रोबेबिलिटी दैट इज 1/2. A quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 has two equal roots. So if, तो क्या पॉसिबल हो जाएगा यहाँ पे? b square minus 4ac is equal to 0. ठीक है. इक्वल रूट्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज और फॉर ap a plus z, तो दैट इज a plus n minus 1 into d. ठीक है. क्लियर.
नेक्स्ट इज द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन सेम रेशियो। ठीक है। The tangent at any point of a circle dash is to radius through the point of contact। तो the point of contact से वो कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है। आंसर इज परपेंडिकुलर। ठीक है। cosec स्क्वायर 60 माइनस cot स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं फटाफट से। तो cosec स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 2/√3 होती है। 2/√3 का स्क्वायर एंड माइनस cot स्क्वायर 60। सो cot स्क्वायर 60 1/√3 का स्क्वायर आ जाएगा। सो 2/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 4/3 हो जाएगा माइनस कितना हो गया? 1/3 हो गया। तो 3/3 which is equal to, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे आप? 1 आंसर। ठीक है। Probability of impossible event, so that is 0। ठीक है। Next question is consider the number 4 to the power n where n is a natural number, whether there is any value for n for which 4 to the power n ends with 0 digit। तो आपको पता है कि जब नंबर के अंदर जो हमारा नंबर दिया हुआ है, बेस के अंदर जो भी नंबर हमें दिया हुआ है उस नंबर के फैक्टर्स करके देखते हैं। अगर उस नंबर के अंदर 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है तो वो नंबर हमारा 0 के साथ एंड होगा, अदरवाइज ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? 4 टू द पावर n। तो 4 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 टू द पावर 2। यहाँ पे क्या दिख रहा है? 2 × 2 एंड होल पावर n। सो हमें यहाँ पे कोई 5 का कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है, तो ये नंबर जो है वो हमारा इसके साथ में एंड नहीं होगा। तो दैट इज नो। नेक्स्ट इज एक्सप्रेस द नंबर 144 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं फटाफट से 144 के। तो 144 के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकलेंगे? 72, नाउ नेक्स्ट 36, अगेन 18, 3, अगेन 9, 3 एंड नेक्स्ट हम लोग 3/3 यानी कि 1। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 4। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of a quadratic polynomial px is equal to ax square plus bx plus c where a is not equal to 0 then write the relation between the zeros and the coefficients। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस b/a। और अल्फा बीटा क्या होता है? c/a। ठीक है। नेक्स्ट इज फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x plus y is equal to 5 and x minus y is equal to 1। x plus y is equal to 5 and x minus y is equal to 1। ठीक है। क्या करेंगे? दोनों को एलिमिनेशन मेथड से ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 2x is equal to 6। तो x is equal to कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 3 plus y is equal to 5 is equal to 5। So y is equal to 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स को अगर हमें फाइंड आउट करना है किसी भी सीरीज के अंदर, और सीरीज हमें दे रखी है 1, 3, 5 एंड उसका जो लास्ट टर्म है दैट इज 19। सो an is equal to 19 आपको गिवन है। a is equal to 1 and for 3 minus 1 is equal to 2। सो वैल्यू निकालेंगे an is equal to 19 से। तो जो n है हमारा नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग फटाफट से। सो फिगर हमारा कैसा रहेगा? ये हमारा फिगर रहेगा। यहाँ से दो टेंजेंट्स जो है वो हम इसके ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं और ये एंगल हमें कितना दे रखा है? 80 डिग्री दे रखा है। ठीक है। आपको पता है कि जो सेंटर से और परपेंडिकुलर होते हैं
सेंटर हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, दिस इज पॉइंट P, दिस इज A एंड दिस इज, ठीक है। चलिए अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे आपको एंगल निकालना है POA, यानी कि आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अगर मैं यहाँ से एक डॉटेड लाइन बनाता हूँ तो मुझे कौन सा एंगल निकालना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए एक लाइन है, सो एक लाइन के अंदर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये जो एंगल होगा, सो फर्स्टली वी कैन से दैट ये वाला जो एंगल कंप्लीट एंगल होगा वो कितने का होगा, सो दैट 90 प्लस 90 प्लस 80 प्लस एंगल AOB is equal to 360 degree, is 360 degree, ठीक है। सो यहाँ से अगर मैं एंगल AOB को निकालूंगा तो एंगल AOB कितना आ जाएगा, यहाँ से 180 कैंसिल आउट हो गया, 180 यानी कि 100 कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। अब 100 डिग्री ये पूरा एंगल कितने का हो गया, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो कितने का आ गया हमारे पास में, 100 डिग्री का, ठीक है। अब 100 डिग्री के बाद आपको ये पता है कि ये जो दोनों ट्रायंगल होंगे, ये दोनों ट्रायंगल, अगर हम दोनों ट्रायंगल की बात करें तो ये वाली ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, ये ट्रायंगल जो है वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल से यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एंगल APO की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी बेटा, 80/2, सो विच इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। और जब ये 40 का हो जाएगा तो 90 प्लस 40, ठीक है, और इज इक्वल प्लस एंगल APO इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180। तो यहाँ से एंगल APO की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 50 डिग्री, ठीक है। एंगल APO कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स -3,4 एंड 7,2। सो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। सो डिस्टेंस फॉर्मूला से मान लीजिए ये A और B है और इनके बीच की अगर मुझे कोई डिस्टेंस निकालनी है तो क्या होगी, x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड माइनस y2 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट रख दीजिए बेटा। सो कोऑर्डिनेट रखेंगे हम लोग, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट रखेंगे यहाँ पे बेटा, कोऑर्डिनेट्स, सो रूट 7 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। 7 प्लस 3 10 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 यानी कि -2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 प्लस ये कितना हो जाएगा 4, आंसर हो जाएगा √104 यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin A, वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, sin A डॉट cosec A प्लस sec A डॉट cos A, ठीक। चलिए तो sin A cosec A को क्या लिखेंगे हम, 1/sin A लिखते हैं, प्लस sec A को क्या लिखेंगे बेटा, तो 1/cos A, और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos A, ठीक है। sin A से sin A कैंसिल आउट हो जाएगा, cos A से cos A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 + 1 which is equal to, बच्चे क्या करते हैं जल्दी जल्दी में 0 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो 0 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose radius is 7 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। इसके दो तरीके हैं बेटा, देखो एक तो ये तरीका है, आपको दोनों तरीके बता देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, जो आपको लगे आप वो कर सकते हो। आप डायरेक्टली वैसे πr² θ/360 से भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, तो πr² 22/7 मल्टीप्लाई r कितना दिया हुआ है आपको, 7 × 7 × 90, क्योंकि क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Next question, in a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc. आपको क्या करना है, एक आर्क है बेटा जो कि आपकी 60 डिग्री का एंगल बनाती है. उस 60 डिग्री के एंगल में हमें आप किसकी लेंथ निकालनी है, इस आर्क की लेंथ. ठीक है, तो क्या करेंगे, तो ये होता है 2 पाई आर अपॉन 360 और ये थीटा. सो 2 पाई आर 2 मल्टीप्लाई पाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई आर कितना दिया हुआ है आपको 21 दिया हुआ बेटा. ठीक है, और थीटा कितना है हमारा 60 डिग्री अपॉन 360. ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा. 7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स. ठीक है, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स. कैलकुलेशन करेंगे. सो दैट इज कितना बचा 66 अपॉन नीचे कितना बचा टोटल सेंटीमीटर. किसी को कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन आए हुए हैं आप लोगों के लिए. नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास. राइट द मॉडल क्लास ऑफ द वेट ऑफ द स्टूडेंट. तो आपको क्या लिखनी है, मॉडल क्लास लिखनी है. मॉडल क्लास क्या होती है, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारी क्या हो जाती है, मॉडल क्लास. तो दिस विल बी योर मॉडल क्लास. ठीक है, ये जो आपकी क्लास रहेगी वो कौन सी रहेगी, मॉडल क्लास रहेगी 60 to 70. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. So next question is, the marks obtained by 10 students of class any class are presented in the table below. Find the mean marks. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फटाफट से क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, fx फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा fx. तो fx कैसे निकालेंगे बेटा, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 to the 4, 3 4 the 12 and 4 2 the 8, 5 1 the 5. सब निकालेंगे क्योंकि सिग्मा fx अपॉन सिग्मा. तो सिग्मा fx की वैल्यू 415 5 17 17 और ये 25 30 अपॉन सिग्मा f कितना 213 3 और 4 7 7 और 2 9 9 और 10. तो मीन आएगा कितना आ जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 6x + 8. ठीक है, इसके पॉलिनोमियल्स के हमें इस पॉलिनोमियल के क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं. ठीक है, तो जीरोस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम सीधा जो मेथड है हमारे पास वही अप्लाई करते हैं. तो x² - 6x + 8 मिडिल टर्म को स्प्लिट करिए. x² मिडिल टर्म 4x - 2x + 8 हो जाएगा. x कॉमन ले लीजिए, x - 4 - 2 कॉमन लेंगे तो x - 4 हो जाएगा. ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका x - 2 और x - 4 करेंगे और इनको दोनों को पर्टिकुलर 0 के इक्वल कर दीजिए. तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाएगी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. The sum of 2-digit number and the number obtained by reversing the digits is 66. ठीक है, so सबसे पहले हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की. तो the question is, the sum of 2-digit number and the number obtained by. तो let unit digit is equal to x. ठीक है, and tens digit क्या होगा, tens digit को हम लोग क्या मान लेते हैं, y. ठीक है, तो नंबर क्या बनेगा हमारा 10y + x. क्या हो जाएगा नंबर 10y + x हो जाएगा. ठीक है, और उसके बाद हमें दिया हुआ है कि अगर हम इसको रिवर्स करते हैं तो रिवर्स करने का जो नंबर बनेगा सो हम यहाँ लिखेंगे ऑन रिवर्सिंग. ठीक है, तो रिवर्स करने पर क्या हो जाएगा 10x + y इनका जो
दिया हुआ था। बाकी आपकी बुक में जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आपसे वैल्यूज फाइंड आउट करवाई गई है कि जो नंबर होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो नंबर भी अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो इसमें एक कंडीशन जो है वो नहीं दी गई है। अगर वो कंडीशन भी अगर आपको देते हैं तो आप इसका आंसर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 इवन नंबर्स। तो फर्स्ट इवन नंबर कहां से स्टार्ट होता है बेटा? 2 4 6 8 10, ठीक है। नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 4 6। तो फर्स्ट 15 जो है वो नंबर्स का सम निकालना है। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो फॉर्मूला अप्लाई करने पर क्या होगा? Sn इज इक्वल टू n/2 प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। सो n/n कितना है बेटा आपका? 15/2 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस n कितना है? 15 माइनस 1 और ये d कितना आ जाएगा बेटा? सबके बीच में कितने का गैप होता है? 2 का, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 15/2 2 to the 4 प्लस 15 माइनस 1 दैट इज 14 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28, ठीक। सॉल्व करेंगे आगे फर्दर। 15/2 मल्टीप्लाई 32 तो इसका करोगे 16, आंसर कितना हो जाएगा? 240 आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। इन द गिवन फिगर बिलो DE is parallel to BC and find the value of AD। सो किससे होगा ये? तो आप लोगों को पता है सबको। किससे अप्लाई करेंगे? BPT अप्लाई करेंगे। तो BPT के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब ये दो लाइंस, ये जो लाइंस आपको दी गई है, ये लाइन जो है वो इस लाइन की क्या है? पैरेलल है। और जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो हम क्या करते हैं? सीधा BPT को अप्लाई करते हैं और BPT से क्या हो जाता है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे AD/AB इज इक्वल टू AE/AC, ठीक है। सो AD हमें नहीं पता तो यहाँ पे AD आ जाएगा अपॉन AB क्या है बेटा? AD प्लस BD, ठीक है, इज इक्वल टू AE कितना दिया हुआ है आप लोगों को? 1.8 दिया हुआ है अपॉन AC कितना है बेटा? 7। ये AC कितना हो जाएगा? AC अगर मैं देखूं यहाँ पे, अगर AC को मैं यहाँ से देखूं तो AC कितना है? 1.8 और 5.4 ये दोनों क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 7.2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगी अपॉन 7.2, ठीक है। AD की वैल्यू कितनी? नहीं पता हमें, तो AD/AD प्लस BD की वैल्यू कितनी है बेटा? आप लोगों को दी गई है 7.2 दी गई है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे इसको फटाफट से। सॉल्व करते हैं, क्या आएगा? 7.2 AD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.8 AD प्लस, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई से करता हूँ तो दैट विल बी 6 129, ठीक है। इसको आप इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7.2 AD माइनस 1.8 AD और ये कितना रह जाएगा यहाँ पे? 12.96, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5.4 AD आ जाएगा और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? ये आ जाएगी आप लोगों के लिए 12.96 और 5.4 आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो सेंटीमीटर आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपने अगर इसका सॉल्यूशन किया आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स the chord of the larger circle which is touches the small
सर्कल हैं, ठीक है, और दोनों कंसेंट्रिक सर्कल के अंदर क्या होता है कि वो जो एक कॉर्ड है वो क्या करती है, सेंटर से और ये यहाँ पे O आ जाएगा, यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ पे B, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि जो AP है वो टू प्रूफ में आ जाएगा। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि AP जो है वो BP के, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है, AP इज इक्वल टू BP आप लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ तक, और एक लाइन यहाँ से हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। और दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ये एंगल तो आपको बताएंगे कि जो ट्रायंगल सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जो लाइन बनाई जाती है वो क्या करती है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। सो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा, बिकॉज ये क्या है आपकी रेडियस है, ठीक है। एंगल APO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल BPO हो जाएगा। क्यों हो जाएगी, 90, ठीक है। और एक जो है हमारी OP जो साइड है वो OP के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये कैसे कॉमन साइड है, ठीक है। और जैसे कॉमन साइड हुई तो ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOP हो जाएगा। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो हमारी AP है वो किसके इक्वल हो जाएगी, BP के इक्वल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं। तो इधर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या होता है डायरेक्टली, x2 + x1 अपॉन 2 एंड सेकंड इज y2 + y1 अपॉन, तो 6 + 8 अपॉन 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 + 10 अपॉन, सो 6 + 8 यानी पे 14 अपॉन 2 और ये क्या हो जाएंगे 18 अपॉन, सॉल्व करेंगे तो 7, ठीक है। PQ की लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो डिस्टेंस फार्मूला आप अगर यहाँ से देखेंगे, सो डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस फार्मूला के लिए हमें x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 6 - 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, सो 8 - 10 का होल स्क्वायर, 6 - 8 यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस ये भी क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 + 4, 4 + 4 ये कितना हो जाएगा √8, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 2 sin स्क्वायर 30 + 4 tan 45 + 3 sec 60 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो दैट इज 2 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 × tan 45 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 × इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए 2 × 1/4 प्लस 4 हो जाएगा अपॉन 6 आ जाएगा, उसे जो कैंसिल यहाँ पे 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4
peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long row. Find the area of the part which is filled in the horse can be grass. ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग एक मान लीजिए ये शेप में और यहाँ पे कहीं भी एक हॉर्स है और वो जब हॉर्स खाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, क्वाड्रेंट बनेगा. ठीक है, तो क्वाड्रेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसकी जो रेडियस हो जाएगी वो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस कितनी होगी बेटा 5 मीटर हो जाएगी. ठीक है, सो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्वाड्रेंट है तो, और क्वाड्रेंट के लिए जब एंगल बनेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर. ठीक, सो ये 1/4 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा. ठीक है, कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 11 5 जा 55 और ये हो जाएगा 275 अपॉन 40. यहाँ पे आ जाएगा ये 9.625 मीटर स्क्वायर. ठीक है, क्लियर, ये हमारा एरिया हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा. हमें क्या करनी है, इस डेटा की मीडियन फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो सब डेटा चेक कर लेते हैं. डेटा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है ऑलरेडी. ठीक है, तो डेटा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले CF फाइंड आउट निकालेंगे, CF फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, तो CF को निकालते हैं, तो CF के लिए ये 2 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, एंड दिस इज 22, एंड ये कितना हो जाएगा 32, 38, और ये कितना हो जाएगा बेटा 40 हो जाएगा. एंड वही 2 निकालते हैं, तो 40 ऑन 2 विच इज इक्वल टू 20. तो 20 हमें कहाँ पे मिल रहा है, इस वाले में. तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी. तो मीडियन क्या हो जाएगी बेटा, तो निकालने को आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो. फॉर्मूले से आपको निकालने के लिए लोअर क्लास वगैरह चाहिए, वो ग्रुप डेटा से निकलती है. तो ये हमारा कितना आ गया, और हम इसको चेक कर लेंगे, ये हमारे CF जो है वो इसके अंदर लाई कर रही है. तो मीडियन हमारी कितनी हो जाएगी, मीडियन कितनी आ जाएगी बेटा 30 आ जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 2 white 4 red marbles. If a marble is drawn at random from the box, then what is the probability of the marble? So white marble की probability, तो total marbles कितनी है हमारे पास, total marbles कितनी है बेटा, so 3 to 5 9 marbles. ठीक है, total marbles कितनी है 9. white कितनी है बेटा 2 है. तो probability of white कितनी हो जाएगी, probability of white कितनी हो जाएगी 2/9. ठीक है, एंड नॉट white के लिए क्या करेंगे, नॉट white के लिए तो आपको पता है 1 - 2/9, ये कितना हो जाएगा 7/9. ठीक, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग. The product of 2 consecutive positive integers is 306. Find. So let first integer is equal to x, और जो सेकंड होगा, सेकंड इंटीजर कितना हो जाएगा x + 1. ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है हमें कितना, तो x × x +
ठीक है। नेक्स्ट जो आंसर होगा वो x प्लस 1 यानी कि 17 प्लस 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये इसका और में दिया हुआ था क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 15 मोर देन इट्स ब्रेड्थ। ठीक है, तो जो लेंथ है हम ब्रेड्थ को क्या करते हैं, लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू हम लोग x मान लेते हैं और जो लेंथ हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी x प्लस 15। ठीक है, और एरिया का मुझे निकालना है तो एरिया कितना होता है L मल्टीप्लाई b, सो एरिया इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई x प्लस 15। ठीक है, मैं इक्वेशन बना देता हूँ आप लोगों के लिए और आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 250। ठीक है ना, ठीक है, और इसको आप अगर स्प्लिट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका स्प्लिट हो जाएगा किस किस में, आप डायरेक्टली इसको 25 और 10 में क्या कर लेना, स्प्लिट कर लेना। ठीक है, ये इतना ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, स्प्लिट कर दिया मैंने आप लोगों के सामने और आप लोग जब सॉल्व करो तो आप इसको करके देख सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द पॉइंट्स -2, 0, 2, prove that the points -2, 0, 2, 0 and 0, 2, 3 are the vertices of an equilateral triangle। तो जब भी कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है कि वो जो ट्रायंगल होता है उसकी जो तीनों साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो डिस्टेंस क्या आएगी तीनों पॉइंट्स के बीच में, इक्वल आएगी। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो मान लीजिए लेट सपोज कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट है वो हमारा ए पॉइंट हो जाएगा, इसको पॉइंट बी मान लीजिए और इसको पॉइंट सी मान लीजिए। ठीक है, और सॉल्व करते हैं। ए बी निकालूंगा मैं, तो ए बी कितनी हो जाएगी, ए बी हमारी हो जाएगी 2 + 2 यानी कि मैं सीधा डायरेक्टली लिख रहा हूँ 4 का स्क्वायर प्लस 0, तो ये तो 0 हो ही जाएगा। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16, तो ये हो जाएगा 4। नेक्स्ट BC निकाल लेते हैं, BC कितनी आ रही है बेटा, सो ये भी हमें क्या करना है, यहाँ से 0 - 2 यानी कि -2 का स्क्वायर 4 और 0 - 2 0 - 2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2 3 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 4 4 12 14 हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा √16 which is equal to 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, ऐसे ही हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से AC के बीच की लेंथ। तो AC कितनी हो जाएगी बेटा, AC कितनी आ जाएगी, सो 0 - 2 यानी कि 0 - 2 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा कितना 2√3 का स्क्वायर कितना होगा 12 होगा, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, बीच की सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ P if the points A 6, 1, B 8, 2, C 9, 4 and D B, 3 are the vertices of a parallelogram। तो अगर पैरेललोग्राम की क्या होती है, डायगोनल्स जो हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स, जो डायगोनल है वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो डायगोनल अगर बाइसेक्ट करते हैं तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, एक पैरेललोग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ करें। ठीक है, और ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये C और ये D। ठीक है,
किसकी वैल्यू निकालनी है, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, तो r जो है ये इसका क्या होगा, ये इसका मिड पॉइंट होगा। तो अगर मुझे अगर मैं r के कोऑर्डिनेट निकालता हूँ तो r के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, r के कोऑर्डिनेट पहले हम ac से निकालेंगे। तो ac के अकॉर्डिंग जो r के कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे, a और c, तो 9 + 6 / 2 और ये हो जाएगा 4 + 1 / 2। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, r के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 15/2, 5/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, BD से निकालना है। तो बाई BD, ठीक है, BD से कैसे निकालेंगे बेटा, p + 8/2, 3 + 1 BD से निकालें तो p + 8/2 और ये हो जाएगा 3 + 2/, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, p + 8 को p + 8/2 को किसके इक्वल कर देंगे, 15/2 के इक्वल कर देंगे, 15/2 के इक्वल कर देंगे। कैंसिल आउट हो गया, p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 15 और ये कितनी आ जाएगी 7। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √1 - cos A / 1 + cos A = cosec A - cos A। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें 1 - cos A से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, on multiplying by 1 minus cos A upon 1 plus cos A multiply 1 minus cos A upon 1 minus cos A आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसा क्यों किया, जिससे स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर से हम दूसरी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या बन जाएगा बेटा, रूट के अंदर 1 minus cos A का होल स्क्वायर बन जाएगा और अपॉन में क्या बन जाएगा बेटा, 1 minus cos स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, 1 minus cos स्क्वायर A रूट के बाहर आएगा तो 1 minus cos A बचेगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर A, इसको क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर A। ठीक है, ये ऐसे था। ठीक है, इसको बाहर निकालेंगे तो 1 minus क्या आ जाएगा, cos A आ जाएगा अपॉन ये रह जाएगा sin A रह जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर लीजिए। तो डिनोमिनेटर को स्प्लिट करने पर क्या आएगा, 1 minus sin A माइनस ये क्या हो जाएगा, cos A अपॉन sin A। ठीक है, तो 1 minus sin A क्या होता है, cosec A होता है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये आप लोगों का कंप्लीट प्रूफ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin A plus cosec A square plus cos A plus sec A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 plus tan square plus cot square। चलिए क्या करें हम, स्क्वायर ओपन करिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A प्लस cosec स्क्वायर A, फिर क्या आएगा प्लस 2 sin A और cosec A आ जाएगा। ठीक है, प्लस अगर इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो क्या आएगा बेटा, cos स्क्वायर A प्लस sec स्क्वायर A प्लस 2 cos A और sec। ठीक है, चलिए देखिए बेटा,
जो cos स्क्वायर ए है इसको यहाँ पे लेके आ जाइए, तो ये इसके साथ आ जाएगा, cos स्क्वायर ए हो जाएगा। और इसके साथ हम लोग बात करते हैं, उसके बाद कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस 2 कॉस ए, जो हो जाएगा सेक ए, ठीक है। अब आप लोगों को ये पता होगा, आप लोगों ने सॉल्व किए होगा क्वेश्चन, तो आपको सीधा डायरेक्टली ये पता होगा कि साइन ए जो है कोसेक ए का अपोजिट है और कॉस ए, और ये सेक ए है आपस में अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, और ये इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो इक्वल टू 1 अगर आप लोग करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो इस पे जगह पे 1 आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये भी 2 हो जाएगा। अब देखिए बेटा, अब हमें क्या चाहिए, वहां पे कोसेक स्क्वायर चाहिए, कोसेक स्क्वायर की जगह पे कॉट स्क्वायर हम लिख लेंगे इजीली, और सेक स्क्वायर की जगह टेन स्क्वायर लिख लेंगे इजीली। तो कैसे लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, और सेक स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, प्लस ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया 4 1 5 1 6 एंड 7, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है। और ये हमें क्या करना था प्रूफ करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, आप लोगों ने क्या करना है इसमें, फाइंड द मीन ऑफ द डेटा कलेक्टेड। आपके सामने डेटा दिया हुआ है और इसका आपको क्या निकालना है, मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मीन के लिए हमारे पास मेथड है, तो ये हमारा क्लास डेटा है, तो क्लास डेटा को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले इससे हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे x फाइंड आउट कर लेंगे। तो x पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा 0.02, आपको पता ही है, और ये क्या हो जाएगा 0.06 हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए क्या हो जाएगा 0.10 हो जाएगा, नेक्स्ट में 0.14 हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए 0.18 हो जाएगा, और नेक्स्ट में कितना हो जाएगा 0. ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 पे इससे करेंगे तो 0.08 आ जाएगा, इस तरह से करेंगे तो 0.54 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे 0.90 आ जाएगा, एंड अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 0.56 आ जाएगा, और 4 पे 965 54 90 आ गया, 28 आ गया, और फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट 0.72 और नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 0.4, ठीक है। अब क्या करिए, इनको सबको ऐड कर लेते हैं, तो सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, ठीक है। तो 4 2 6 6 8 14 14 और 4 18 18 और 8 26 22 4 2 6 7 13 into 15 15 और 9 24 24 5 29 29 9 2 अपॉन ये इतना जाएगा 9 4 30 13 और 9 22 24 24 26 28, ठीक है। इसको सॉल्व करने में जो भी होगा आंसर आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो मॉड के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मॉड इज इक्वल टू क्या होता है L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f1 मल्टीप्लाई बाय h होता है, ठीक है।
मॉडल क्लास कैसे निकलती है? जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास होती है वही हमारी मॉडल क्लास है। तो ये वाली जो क्लास होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? दिस क्लास इज मॉडल क्लास। ये क्या हो जाएगी? हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। ठीक है, कलर चेंज कर देता है, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो एल कितनी है बेटा? 300 प्लस F1। तो F1 कौन सी होती है? दिस इज F1, ये तो हो जाएगी हमारी F1, दिस इज F0 एंड दिस इज F2। ठीक है, तो F1 क्या है बेटा आपकी? 45 माइनस F0 कितनी है? 30 अपॉन 2F1 मीन्स 90 माइनस F0 30 माइनस 35 मल्टीप्लाई, गैप कितना? हाइट कितनी है बेटा? क्लास हाइट कितनी है? 100। ठीक है, सॉल्व करिए इसको। 300 प्लस 15 अपॉन ये 60, 60 में से ये गया तो आपका कितना बचेगा? 25 मल्टीप्लाई 100 और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 25 से कट जाएगा 4 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 360। ठीक है, next question, the shadow of the tower standing on a level ground becomes 40 meter more longer when the angle of elevation of the sun reduces from 60 degree to 30 degree. Find the height of the tower. ठीक है, तो एक ये टावर है मान लीजिए और ये इसकी दो कंडीशन हो जाएगी। यहाँ पे 60 डिग्री है और ये कितना हो जाता है? 30 डिग्री। ठीक है, आपको टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, आपको क्या निकालना है? h निकालना है। ठीक है बेटा, द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग, ये जो इसको अगर मैं x मान लूँ तो यहाँ से यहाँ तक की जो कंप्लीट डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? x प्लस 40। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? सो लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी बेटा? h सेंटीमीटर। ठीक है, इसको h सेंटीमीटर मान लिया। सो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसको मान लीजिए a है, ये b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए। ठीक है, सो कितना हो जाएगा? ab अपॉन ab अपॉन क्या हो जाएगा? bd हो जाएगा। तो 10 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बेटा? √3 और ये ab कितना है? ab h अपॉन bd कितना है? x है। h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? √3x। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल के लिए बात करते हैं। तो tan 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन ये कितनी हो जाएगी? x प्लस 40 हो जाएगी। ठीक है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है और ये h अपॉन ये कितनी है बेटा? x प्लस 40। ठीक है, सो √3h √3h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x प्लस 40। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें, ये दोनों ही वैल्यू, h की वैल्यू यहाँ से कितनी है? √3, तो √3 की वैल्यू यहाँ से उठा के वहाँ पर रख दी। यहाँ से ये जो h की वैल्यू है इसको वहाँ इक्वेशन में पुट करेंगे, तो √3 मल्टीप्लाई √3h आ जाएगा, √3x आ जाएगा। √3x आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा? x प्लस 40। ठीक है, और ये कितनी होगी बेटा? अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3x हो जाएगा। 3x माइनस x इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। ठीक है, 3 2x
एच की वैल्यू एक्स की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है, तो 20√3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द बैंक्स on opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridges is at a height of 3 meter from the banks, find the width of the river. तो यहाँ पे कहीं ब्रिज है और उस ब्रिज से दोनों साइड में एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना है, यहाँ पे एक साइड का जो है वो हम मान सकते हैं 45 डिग्री मान लीजिए और एक साइड का जो है 30 डिग्री, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये जो एंगल है फिर अगेन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा और दिस विल बी 45 डिग्री, ठीक है। ये ट्रायंगल बन जाएगा। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, विड्थ निकालनी है। तो विड्थ जो है मुझे यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ये चीज मुझे फाइंड आउट करके लिखनी है, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है कि सेम ही क्वेश्चन है, ए बी एंड दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो पहले बात कर लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल में बात करते हैं। तो ABD ट्रायंगल का क्या हो जाएगा बेटा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AD अपॉन BD, ठीक है। हाइट जो है वो 3 मीटर हो, ठीक है ना, ये हाइट जो है वो आपकी 3 मीटर है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1/√3 हो जाएगी, ठीक है। और AD की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 हो जाएगा अपॉन BD, ठीक है। तो BD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3√3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग उधर वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। सो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ADC, इन ट्रायंगल ADC में बात करते हैं। तो ADC के अंदर क्या होगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, tan 45 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AD अपॉन CD हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग 1 इज इक्वल टू AD की वैल्यू कितनी है, 3/CD, ठीक है। तो CD की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है हमें, BD और CD को ऐड करना है। BD और CD को ऐड करेंगे तो 3 + √3 प्लस 3 आ जाएगा, तो 3 को ले लीजिए इसमें से, तो आ जाएगा √3 + 1, ठीक है, क्लियर है। तो इसे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक of side 14 cm such that the diameter of the hemisphere is equal to the edge of the cube, ठीक है। साइड ऑफ क्यूब जो हमें दी गई है वो हमें दी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस कितनी हो जाएगी, R की अगर मैं बात करूं 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे ये जो दिया हुआ है डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, ठीक है ना। तो एज ऑफ द क्यूब जो दी गई है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे यहाँ पे जो रेडियस ली है वो कितनी ले ली है, 7 सेंटीमीटर ले ली है, ठीक है ना। अब उसके बाद में हम लोग करते हैं आगे सॉल्व। तो आगे आपको बोला गया है कि डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। आप एक सपोज करिए कि किसी भी एक क्यूब के अंदर से अगर एक डिप्रेशन निकाला जाता है तो वो डिप्रेशन कुछ इस टाइप का बनेगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम लोग बात करें तो जो रिमेनिंग सरफेस एरिया है वो सॉलिड का कितना होगा। तो रिमेनिंग सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं तो रिमेनिंग सरफेस एरिया कितना होगा, एक तो 6a² कंप्लीट होगा, उस 6a² के अंदर ये बढ़ जाएगा तो ये कितना होगा
क्योंकि जब ये डिप्रेशन बाहर निकलेगा, क्योंकि ये 6a² जो था वो हमारा टोटल सरफेस एरिया था, जिसके अंदर से जब ये डिप्रेशन निकालेंगे तो जो ऊपर की वुड होगी, वो वुड जो सरफेस होगा, वो सरफेस भी उसमें से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकलने की वजह से मैंने क्या कर दिया, -πr² कर दिया। आप वैल्यू रखोगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिक निकल आएगा। यहाँ पे 6 × 14 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई और πr² की जगह पे क्या कर देंगे, 22/7 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई से आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 196 मल्टीप्लाई 6 हो गया, ठीक है, प्लस और ये कितना हो जाएगा बेटा, 134, इसको मल्टीप्लाई कर लेके तो 36 हो जाएगा, 36 देखिए फिक्स आएगा 57 5 प्लस ऑन 54 ऐड करेंगे के लिए आंसर आ जाएगा, और 6 4 10 कैरी 1 1 5 1 6 2 6 और 7 30 कैरी 1 2 3 स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a pen stand of a wood in the shape of a cuboid with 4 conical depressions or 2 volt pen. The dimensions of the cuboid. A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions, 2 volt pens. The dimensions of the cuboid are 15 cm, 10 cm, 3.5 cm. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम एक जो है वो आपका एक इस टाइप का एक पेन स्टैंड बना रहे हैं, और इस पेन स्टैंड के अंदर जाते ये क्यूब है, क्यूबॉइड की शेप में है, और इस क्यूबॉइड की शेप में से क्या करना है, हमें डिप्रेशंस निकालना है, ठीक है। 1 2 कॉनिकल शेप में 4 यूनिट क्या कर लिए, कहाँ पर क्या होगा, एक बेस होगा, ठीक है, और इसमें से क्या करना है, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा बेटा, तो LBH टाइम, ठीक, तो LBH के लिए क्या करना पड़ेगा, 50 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5, तो ये हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई 3.5, ठीक है, तो 50 माइनस 25, ठीक, 585 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, किसका सेपरेट करना पड़ेगा, किसका 1/3 और मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई πr², ठीक, इसको सेपरेट कर लेना और आपका आंसर आपके पास सामने आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द मॉड ऑफ द लेंथ ऑफ लीव्स, ठीक है, तो इसका क्या निकालना है, मॉड निकालना है, तो मॉड के लिए आप सेम मॉडल क्लास जो होगी वो आपकी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, अपना वो ये आपकी मॉडल क्लास हो जाएगी, ठीक है। मॉडल क्लास के लिए ये आपका क्वेश्चन, ये आपका F0 हो जाएगा, दिस विल बी योर F1 एंड दिस इज F2, ठीक है, ये F2 हो जाएगा। फॉर्मूला आप लगाएंगे, कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई, मॉड इज इक्वल टू बी आउट साइड बेटा, तो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F0, ठीक, फॉर्मूले को लगाना, वैल्यू रख लेना आपकी आंसर, ठीक है। बट उससे पहले थोड़ा सा एक काम देना, हम क्या करते हैं, तो 180 और से लेके 126 है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम 0.5 इधर से माइनस करते हैं, यहाँ से क्या करें सी -G
-8.5 करेंगे और यहाँ पे +0.5 करेंगे, ठीक है। तो ये जो क्या होगा, क्या हो जाएगा 170.5 हो जाएगा और यहाँ से डेटा हमारा पूरा कन्वर्ट होके 186.5 जी। और इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पहले डेटा को कन्वर्ट कर ले और उसके बाद अगली जो चीज़ें हैं वो सिंपल सॉल्व चाहिए, ठीक है। ये आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेप डेविएशन मेथड से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए में क्या करना होता है, पहले मुझे क्या निकालना है, एक्स का, तो एक्स फाइंड आउट कर लेना है। तो एक्स ये तो 40 हो जाएगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा, इस केस में कितना होगा, ये 240, तो दैट इज मल्टी डी, इस केस में 160 एंड इस केस में 200 एंड नाउ फॉर दिस 240, ठीक। ये तो एक्स हो गया। अब इसके अंदर से हम लोग क्या करेंगे, ये एक्सपेंडिचर हो गए और ये हमारे पास नंबर होगा प्लस हमारे पास ए। तो अब ये क्या रखते हैं, ए इज इक्वल टू कंसीडर कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू हमने कंसीडर कर दिया, मान लीजिए 160, ठीक है। ए इज इक्वल टू कितना नहीं दिया, 160 दिया, तो 160 से क्या करेंगे, आज तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर से हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ से निकाल लेते हैं। उसके बाद में ए इज इक्वल टू हमने सपोज कंसीडर कर लिया 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो, माइनस का 80 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 80 क्या यहाँ से माइनस का 40 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा एंड ये क्या 40 एंड दिस इज 80 एंड फॉर द पॉइंट, ठीक है। क्या हो जाए, अब ये हो गया, ये किस चीज़ की वैल्यू आ गई हमारे पास में, ये डी आ गया, ठीक है। ये क्या आएंगे, डी आ, ठीक है। अब डी निकालने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, यू निकालेंगे, ठीक। तो डी निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, यू फाइंड आउट करना है। यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इतना भी हमारा गैप जो हुआ उस गैप से हम इसमें डिवाइड कर, ठीक है। तो यू फाइंड आउट करी, तो यू फाइंड आउट करने के थी इसमें डिवाइड गई, गैप कितना है यहाँ पे आप 40 का है तो -2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना है 40 से डिवाइड करना है सबको, तो -1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 3 आता है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर से FIUI लिखते, ठीक है। तो FIUI के लिए क्या करना, आप देखिए FIUI 5 करना है, तो FIUI के लिए क्या करना पड़ेगा, -4 और ये तक -3 एंड दिस इज 0 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12 एंड दिस विल बी, ठीक है। ये हुआ FIUI। एक तो FI की वैल्यू हमें चाहिए रहेगी, सिग्मा FIUI चाहिए रहेगा, ये फाइंड आउट करना है और उसके बाद में मुझे क्या फाइंड आउट करना है, H, ठीक, ये अगर और H, ठीक है, और नो FIUI का हो गया बेटा 80 36 में से आप 7 में हो गया अपना 31 हो गया, और ये को दिया था वो मैंने लिख के 2 6 5 और 7 12 6 18 24 और 6 30, ठीक है।
30 हो गया और ये इसका 31 है। एच हमारी थी 80 थी और ए हमारा कितना है 40, ठीक है। तो एक्स बार इज इक्वल कितना हो जाए सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ आई ई और ई अपॉन सिग्मा एफ आई इज ना 420 सिग्मा एफ आई यू आई कितना है बेटे ये 31 अपॉन ये कितना है आपका 30 है मल्टीप्लाई एच कितना दिया गया कौन है 48 एच करती check forward by 80 it's 31 upon 30 multiply 40 plus the variance का बढ़े तो 120 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे कुल इसको कर ली उसको ऊपर पे ये थी 12 3 of the 3 lines 3 के 3 1 बचे उसको ना दे 100 पर ही होगा नो now 3/4 at 12 you know even that 8.8 from when 160 80 ठीक यहाँ पे आप लोगों का पेपर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको सबको समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप सब लोग हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। और जल्दी ही हम लोग क्या ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे डेली शाम को, ठीक है। तो जुड़े रहिए हम लोगों के साथ में, ठीक है।